नहीं भेजा। जैसे कुछ लोग आज नए हैं। ओके ओके, ऑलमोस्ट लोगों ने भेजे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, 2010 वाला पेपर है ना। चलो इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, बताओ तो 2010 वाले पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट है। सेवेंटीन 19 17 सर 17 17 ओके 17 ठीक है। ओके तो इस तरह क्वेश्चन के दो तरह के पॉसिबिलिटी है। वंस यू फाइंड डायरेक्टली यू कैन फाइंड मीन, सॉरी मतलब डायरेक्टली यू कैन फाइंड पीडीएफ, देन यू कैन फाइंड सीडीएफ और यू कैन फाइंड सीडीएफ फर्स्ट देन पीडीएफ। So find the PDF of random variable x, ठीक है। Sorry, the PDF for random variable x is given, and find the CDF and PDF of mod x. ठीक है, तो हमारा PDF क्या है x का, mod x upon 2 if is between -1 and 1, okay। Okay, so we have to find PDF and CDF of mod x। देखो इसका सपोर्ट क्या है, इफ यू सी द सपोर्ट ऑफ x, इट इज इंटरवल -1 to 3, ठीक है। So that is not symmetric about 0, so symmetric नहीं है, so that's why it will
did some problem. So graph if you make mod x का ना, so y is equal to mod x का ग्राफ अगर बनाए हम, so problem is what, so -1 -2 -3 and 1 2 3. Okay, so we have only support, we have this. Okay, so -1 2 1 and then 1 2 3. Okay, so if you take when -1 to 1, this is symmetric. So you will consider like y will be, when x is -1 to 1, y will be 1, and when x is 1 2 3, or here y has value 3. So y can take what value? This is the values of x, and y can take value what? What is the range of y? मतलब mod x. y का रेंज क्या? y mod x है, x -1 से 3 के बीच है, so y का रेंज क्या होगा? 0 to 3. 0 to 3. You can see in the graph. So y can take value 0 to 3. Okay, but the problem is what, we are going from x to y, but we have to consider that when y is between 0 and 1, see, when y is between 0 and 1, in that case x is between -1 and 1, but when y is between 1 and 3, so x is only 1 to 3, so it is not taking -1 to -3, so this part is not included, so this part is excluded, -1 to -3 x-axis, so that part is excluded, so you don't have to include it, enough. So you have to take care of only that thing. So like when you find the CDF of y, so the left endpoint, like in the definition of CDF, what happens, see, when you write the CDF of suppose I write y, so in general definition is what, -infinity to infinity PDF of y dy. So in this case to y होगा ना? Sorry, yes, so thank you, -infinity to y है ना PDF of this. So what will happen here, it will take you because the definition is CDF is what, probability capital Y less than equal to small y. So here when you start, so the left point of support of x, or you say y, so y actually it takes 0, but when you go to x, so x it will start from -1. So this is the definition, and similarly if you write for y, sorry, for x, if you write, it will be like fx of x dx. So this is the definition of CDF, and so for x, if you write, when you will simplify it, so since between -infinity and -1, this PDF has no value, so I mean this will be 0, so you can ignore it, and the final if you reduce it, so for this PDF I'm writing, if you define the CDF, it will be -1 to x, fx of x dx. So this I will use while solving this question. Okay, so it will start with -1. In CDF we keep adding. Okay, so problem is like PDF is defined differently. So when x is between -1 and 1, so in that case, when x is between -1 and 1, in that case, y is taking what, 0 to 1, and when x is taking value 1 2 3, y is taking also value 1 2 3. So on y you have two cases. Okay, on y you have two cases, so y can take value 0 to 3, so you have to break into one part when y is between 0 and 1, another part is when y is between 1 and 3. Okay, so 0 and 1 you can include here. So okay, let's start solving this question now. So this was just general information. So when we start solving this question, so question is what is CDF of y is equal to mod x. So we'll start with the definition of CDF of y. So definition of CDF of y है ना, क्या होता है, कैपिटल Y लेस देन इक्वल स्मॉल y, ये डेफिनेशन है CDF का, और इसको तुम अगर ब्रेक करोगे, तो हमारे पास x का PDF है, तो वी कैन यूज दैट. तो मुझे क्या करना है, y की जगह मैं mod x रख देता हूँ, ठीक है. जनरली तुम लोग यही करते हो, जो वन वेरिएबल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है,
सो वी डू जनरली बाई दिस वे। वो भी कर सकते हो, जो फॉर्मूला तुम्हारे पास है उसको भी यूज कर सकते हो। सो mod x लेस देन इक्वल टू y, इसको सिंप्लीफाई करो। सो एफ वाई ऑफ y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल X more than equal to minus y less than equal to y. And now, so which way you want to go? There are two ways. Okay, so one, first I will find PDF, then using that PDF you can find CDF. The other way is first you find CDF, then you find PDF using that CDF. So there are two ways. First, what what do you want to find first? तो चलो पहले मैं PDF वाले तरीके से करता हूँ, या CDF वाले से कर सकते हैं। करो कौन सा तरीके से करें? अगर देखो मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ दो तरह के केसेस आएंगे। फिर से दो तरह के केस क्या आएगा कि y की वैल्यू क्या है। तो तुम्हें पता है कि y कैन टेक वैल्यू 0 to 9, बट देयर इज एक्सेप्शंस। y इज बिटवीन 0 and 1, देन x इज -1 to 1, सो दैट PDF विल बी यूज्ड। एंड व्हेन y इज बिटवीन 1 to 3, तो चलो पहले CDF से ही निकाल कर बताता हूँ, फिर हम PDF पे आएंगे। तो मैं इस तरह से करता हूँ, डायरेक्टली CDF फाइंड करते हैं। So limit you will take, see, when y is between 0 and 1, okay, this is a one case. Another case is y between 1 to 3. So you can take equality here. So what will be the limit in this case? So check when y is between -1 and 1. So I'm making graph again. Oh sorry, it's not x square, we have to make mod x. So -1 1, when x is between -1 and 1, y is between 0 and 1. So in that case you take any number between 0 and 1. Suppose I take y somewhere between 0 and 1, so you take the inverse image. So inverse image will be what? This will be minus inverse image of what? y is equal to mod x. So इधर जो होगा x होगा, इधर जो होगा -x होगा. So like for यहाँ पे देखो x की लिमिट क्या है, -y to y, -y लो, यहाँ y लो, x की वैल्यू उधर y होगी, इधर माइनस। तुम्हें पता है ना मॉड एक्स में क्या होता है, राइट साइड में y इज इक्वल टू x होता है और लेफ्ट साइड में y इज इक्वल टू -x होता है। सो करस्पॉन्डिंगली यू फाइंड x। सो यहाँ x की वैल्यू y होगी राइट साइड में, 0 के राइट में, और यहाँ x की वैल्यू -y होगी। तो मेरा मतलब ये है कि यू कैन टेक लिमिट -y to y, ओके, एंड यू इंटीग्रेट इट, सो इट विल हैपन। और तुम्हारा PDF क्या है इस केस में? सो जब y 0 से 1 में है तो x क्या होगा, y 0 से 1 तो x -1 से 1 में होगा। सो यू कैन यूज दैट PDF। विच PDF? द फर्स्ट वन, mod x अपॉन 2, है ना? सो यू कैन यूज mod x अपॉन 2 dx. So this is when y is between 0 and 1, and since y taking 1 to, again you remember in last class I discussed, so हम क्या फाइंड कर रहे हैं, y का CDF फाइंड कर रहे हैं। CDF में क्या होता है, पहले 0 होता है। अगर मैं यहाँ लिखता y लेस देन 0, तो इन दैट केस 0, देन वो वाला पार्ट, दूसरा पार्ट लिखा हमने सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन में वो भी ऐड होता है CDF में, है ना? सो व्हेन यू राइट द नेक्स्ट लाइन, व्हेन y इज बिटवीन 1 and 3, चलो तो यहाँ देखो ग्राफ में y कोई नंबर है 1 और 3 के बीच का। सो सपोज यहाँ पे है, सो इसका इन्वर्स में तो ठीक है, यहाँ पे आएगा कोई नंबर, है ना, ये y इज इक्वल टू x है, तो यहाँ भी y आएगी। लेकिन वेयर यू विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि हम CDF फाइंड कर रहे हैं। CDF क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से वहाँ तक जहाँ तक तुम्हारा y है, ठीक है। वी आर फाइंडिंग CDF ऑफ y। तो क्वेश्चन ये है कि अब यही तुम्हें यही लाइन समझना है कि व्हाट टू राइट हियर। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, जब y 1 से 3 है तो लिमिट क्या होगा? देखो ये वाला पार्ट तो ऐड होगा ही, तुम्हें अगर याद हो तो ऐसा होता है CDF में, डिस्क्रीट का लिखकर दिखाते हैं, जो 1/4 है, फिर यहाँ हो जाता है 1/2, फिर यहाँ हो जाता है 1, क्या होता है, ये वाला पार्ट भी इसमें ऐड हुआ है, फिर ये वाला पार्ट भी इसमें ऐड हुआ है ना। सो ये ऐड होता चला जाता है CDF में, बिकॉज इट इज प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y। सो स्टार्टिंग से यू हैव टू कीप एडिंग, जितना इंक्रीज कर रहे हो। तो y 1 से 3 में है, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, y लेस देन इक्वल टू y। इसी का तो मतलब ये है। तो कैपिटल Y की वैल्यू अगर मान लो स्मॉल y तुमने फिक्स कर दिया 1.5, तो कैपिटल Y तो 0 भी हो सकता है ना, 0.5 भी तो हो सकता है। रिपीटिंग माय पॉइंट, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ हम लिमिट क्या लेंगे, हमारा y 1 से 3 में है, तो ये यहाँ कोई y 1 से 3 का मैंने y सेलेक्ट किया, तो उसका इन्वर्स इमेज यहाँ आएगा y।
तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे क्योंकि हम सी डी एफ ले रहे हैं, तो पूरा विल कंसिडर टिल दैट वाई, ये वाला वाई जो मैं लिख रहा हूँ, ये वाइट से अभी जो हम कर रहा हूँ वो वाला। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम -1 to 1, बिकॉज -1 से 1 में जब हम लेंगे इंटीग्रेशन तो हमारा पीडीएफ कुछ और है। तो वो पीडीएफ क्या है, mod x/2 dx प्लस, अब जब 1 से आगे बढ़ोगे 1 से कहाँ तक, y तक, बिकॉज y इज नॉट फिक्स्ड, y is between 1 and 3 but it is not fixed ना, it can be anything between 1 and 3। तो यहाँ पे वो वाला पीडीएफ यूज होगा जो कि x जब 1 से 3 में है उस केस के लिए डिफाइंड है, 3 - x/4। सो यहाँ हम लिखेंगे 3 - x/4, 3 - x/4। और तीसरा केस क्या है, y more than 3। तो जब y more than 3 हो जाएगा है ना, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, ये तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि लिमिट तुम y की जगह 3 रख दोगे तो ऐड होके पूरा 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो। अब यहाँ किसी को डाउट है, यू कैन आस्क व्हाई वी एडेड दिस टर्म, बिकॉज इन सीडीएफ वी कीप एडिंग एवरीथिंग फ्रॉम लेफ्ट, है ना, जो अगला टर्म लिखते हैं वी कीप एडिंग दैट, एक्स्ट्रा जो भी होता है वो उसमें ऐड होता जाता है। सो वी आर राइटिंग सीडीएफ, दैट्स व्हाई। सिंप्लीफाई करो, तो एक तरीका ये है, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इंटीग्रेशन आता है तुम लोगों को, करो सॉल्व, इंटीग्रेशन ही तो है ये। सब लोग इंटीग्रेशन करो, बताओ क्या आया। कितना टाइम लगेगा, मॉड एक्स हो जाएगा, तुम चाहो तो उसको 2 टाइम्स कर लो, इवन फंक्शन है मॉड एक्स, तो 2 × 0 2 y, तो x/2 हो गया, x/2 का इंटीग्रेशन हो गया x²/4, और फिर y पुट कर लो। square on 2 आएगा फर्स्ट लिमिट। ओके, y²/2 आएगा फर्स्ट लिमिट। सो यू कैन ऑल्सो राइट, इफ यू वांट टू राइट 0 इन द बिगिनिंग, यू कैन ऑल्सो राइट 0 इफ y < 0। ओके, y²/2 आएगा अगर y की वैल्यू > 0 < 1 लेता हूँ मैं। नेक्स्ट को इंटीग्रेट करो। 1 से 3 के लिए 1/2 प्लस 1/4 ब्रैकेट में, ब्रैकेट में 3y माइनस y² 2 - 5/2। y² 2 - 5/2। हाँ सर। ओके, इक्वलिटी यू कैन टेक, ठीक है, म्यूट कर लो। हाँ, सो तो यहाँ से ठीक है, 1/2 ही आएगा, तो कंटिन्यूअस यू कैन चेंज द इक्वलिटी बिकॉज y पे वैल्यू सेम रहेगी, 1 पे वैल्यू सेम देगी। नेक्स्ट क्या है, लास्ट हो जाएगा 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये तुम्हारा आ गया CDF ऑफ y। अभी PDF चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। अब PDF चाहिए तो यू जस्ट डिफरेंशिएट इट। ठीक है, Fy ऑफ y, इसको डिफरेंशिएशन कर लो इसका, तो क्या आएगा, y² 2 का 2y/2, तो y हो जाएगा कब, अगर y की वैल्यू 0 से 1 के बीच है। और बाकी केस में डिफरेंशिएट करो, 1/4 3 - y if y is between 1 and 3, 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज। ठीक है,
इस तरीके से आएगा। तो ये एक मेथड था। दूसरे मेथड से करना है, दूसरे मेथड में क्या करता मैं, इसके आगे कंटिन्यू करूँगा मैं। तो ये फर्स्ट मेथड है। इफ आई डू इन सेकेंड वे, सो सेकेंड वे विल व्हाट, तो या पहले हमने CDF फाइंड किया फिर PDF फाइंड किया है। दूसरे वाले में पहले मैं PDF फाइंड करूँगा। सो उसमें क्या है सेकेंड वे में, अगेन विल स्टार्ट विद द CDF ऑफ y। सो डेफिनेशन वही है, y लेस देन इक्वल स्मॉल y, y हमारा mod x है दिस, एंड सॉरी mod x लेस देन y। सो CDF ऑफ y ये तुम्हारा होगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन -y2 प्लस y। सो fy ऑफ y, अब क्या करेंगे, राइट साइड को हम x के CDF में ले आएंगे। तो यहाँ जो रैंडम वेरिएबल है 1/2 और 3 - 1/4, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है 1 पे, ओके। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली वी कैन राइट fx ऑफ y माइनस fx ऑफ माइनस y, मतलब सिर्फ डेफिनेशन यूज़ किया मैंने, CDF एट y माइनस CDF एट माइनस y। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसको तुम अब क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to y। तो क्या होगा, fy ऑफ y, ठीक है, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस fx ऑफ माइनस y इंटू -1। तो ये प्लस हो गया, ओके। तो अब क्या है, सो एक्चुअली वी डिराइव द PDF ऑफ एक y in terms of PDF of x, but it will depend है ना, in the case wise means, so you want to find PDF of y। so again you know there are two cases, y between 0 and 1 and y between 1 and 3 है ना, because there are two different regions। when y is between 0 and 1, x can be between -y and plus y। so fx of y, in the PDF of x, in place of x you have to write y, and y is between 0 and 1, okay। so what should I write, anyone tell me। so देखो y की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच है। तो जब y 0 से 1 के बीच है, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में x जो है वो -1 से 1 में है ना, हमें वो वाला केस लेना है। तो x जब -1 से 1 में, वो वाला PDF में x की जगह y रखना है, x के प्लेस में यहाँ y है। जो PDF तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है उस PDF में x की जगह y रख दो। तो क्या रखेंगे हम, ये वाला है ना, mod x अपॉन 2। तो एक्चुअली ये हो जाएगा mod y अपॉन 2। और देखते हैं, mod y अपॉन 2 प्लस, ठीक है जी। और क्योंकि x -1 से 1 के बीच है, तो यहाँ x की जगह y है। तो y अगर 0 से 1 में, तो वही वाला यूज़ होगा। यहाँ देखो x की जगह क्या है, -y है। तो जब y 0 से 1 में है, तो -y क्या होगा, 0 to -1 होगा। और एक्चुअली x की जगह -y आया है, ठीक है ना, ये PDF यू कैन राइट x, तो उस x की जगह -y है। तो क्या होगा अब, जब x के प्लेस पे तुम -y रखो उसमें, तो वो हो जाएगा, मतलब ये mod y अपॉन 2 होता और ये माइनस mod y अपॉन 2 होगा, ठीक है। तो दोनों ऐड हो गया। नाउ वी कम टू दिस केस, जब y 1 से 3 में है, तो f ऑफ y, तो इस केस में x क्या है, x जो है वो 1 से 3 वाला था। अच्छा, एक्चुअली तुम यहाँ ध्यान से देखोगे ना, मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो y है ये x के प्लेस पे आया, ये -y है जो x के प्लेस पे आया, मतलब क्योंकि fx है ना, ये नीचे x लिखा हुआ है, मतलब PDF ऑफ x में तुम x की जगह y रख रहे हो, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। सो यू लुक केयरफुली, सो y इज बिटवीन 1 and 3। तो ये जो y है एक्चुअली x के प्लेस पे है। तो जब वहाँ x था 1 से 3 में, तो उस केस में PDF क्या थी, जब x था 1 से 3 में, तो उस केस में यहाँ देखो PDF थी 3 - x अपॉन 4, 3 - x अपॉन 4। तो यहाँ मैं लिखूंगा 3 - x की जगह y अपॉन 4, इसकी वैल्यू लिखा है मैंने, ठीक है, x की जगह y रख के। तो 3 - y अपॉन 4 प्लस, अब मैं इसके प्लेस पे क्या लिखूँ, मुझे बताओ कोई।
तो यहाँ x की जगह माइनस वाई आया है, ठीक है। ये जो x के प्लेस पे fx ऑफ x लिखते हैं मोस्टली हम, तो उस x को रिप्लेस करना माइनस वाई से। y का रेंज है 1 से 3, तो इस माइनस वाई का रेंज होगा -1 टू -3, है ना, इस तरह से, या -3 टू -1 यू कैन से। सो जब PDF ऑफ x में x की वैल्यू -1 से -3 में है, तो उसका सपोर्ट क्या है, मतलब सपोर्ट इन द सेंस उसकी वैल्यू क्या होगी। जब हम लिख रहे थे 0 हो जाएगा, है ना, इस तरह से है। सो 3 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -3 है, तो यहाँ सपोर्ट जो है 0 है। हमारा जो सपोर्ट सिर्फ ये वाला रीजन था। सो जब x की वैल्यू -1 से -3 में है, इन दैट केस यू डोंट हैव सपोर्ट। तो ये सपोर्ट में नहीं है, ये 0 है इधर PDF, ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह को हमने पहले भी किए हैं जब थ्योरी कर रहे थे। सो हेयर इट विल गिव यू 0, वाई, बिकॉज ये जो -y x के प्लेस पे आया है उसका रेंज -1 टू -3 है, और -1 टू -3 में जो हमारा क्वेश्चन में डिफाइंड है PDF, वो अदरवाइज में चला जाएगा, है ना। जब x -1 से -3 में है, तो ये अदरवाइज वाला केस है, इसमें 0 हो गया, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगेन यू लुक केयरफुली, ये सो अब ये 0 हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे फाइनली तो क्या आएगा, y/2 y हो गया, 3 - y/4 if y is between 0 and 1, and if y is between 1 and 3, you can take equality anywhere, ठीक है, मैं ही देता हूँ क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो फर्क नहीं पड़ेगा, एंड 0 अदरवाइज। ओके, तो क्या सेम आंसर आया था वहाँ पे PDF? 3 - y/4, 3 - y/4, तो चेक बोथ हैव द सेम आंसर। इस मेथड से PDF वही था जो यहाँ PDF है। अब PDF से CDF निकालना आता है तुम लोगों को, तो अब ये हमने पहले यहाँ PDF निकाल लिया, अब मुझे इस PDF से CDF निकालना है। सो इस PDF को यूज़ करके हमें CDF निकालना है। तो क्या करेंगे अब, Fy ऑफ y, तो डेफिनेशन तो पता ही है, यहाँ y का फिर से 2 रेंज है, तो 0 होगा अगर y लेस देन 0 है। अब y अगर 0 से 1 के बीच है, y अगर 0 से 1 में है, तो क्या होगा, इंटीग्रल, ये होगा इंटीग्रल 0 टू y, ठीक है। और ये y की जगह कुछ नया नाम देना चाहो तो नया दे दो, है ना, लाइक t/dt। तो ये y को मैंने t कर दिया, है ना, PDF मतलब वेरिएबल चेंज कर दिया। जब y की वैल्यू 1 से 3 में हो जाएगी, मैं फिर से बोल रहा था, मैं ये वाला पार्ट ऐड होता, CDF में क्या होता है, ऐड होता जाता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे में। तो यहाँ क्या होगा, ये तो वाला पार्ट रहेगा ही, 0 टू y है, लेकिन अब y 1 से 3 में हो गया, तो 0 से 1 के लिए ये t/dt PDF है, और 1 से y के लिए 1 से y कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये वाला PDF यूज़ होगा। तो इसमें y की जगह t रख देता हूँ ताकि इंटीग्रेशन करने में तुम्हें आसानी हो। तुम y रख के भी कर सकते हो, t नहीं रखना है, t की जगह y रखो, इंटीग्रेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ ये कब है, जब y का रेंज 1 से 3 में है। ओके, इस तरीके से है। और लास्ट में जब y मोर देन इक्वल टू 3 हो गया, तो यहाँ 3 हो जाएगा लास्ट में, मतलब एंड नीचे वाला लाइन में लिखता हूँ, तो वो 1 दे देगा एक्चुअली। तो ये है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, वही आंसर आएगा जो वहाँ आया होगा CDF, ये वाला CDF जो आया यही वाला आएगा। तो दोनों तरीके हैं, सेम चीज़ x² के लिए लागू होता है। अगर इसी में mod x की जगह x² होता है, चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, और यही क्वेश्चन में तुम लोग ट्रांसफॉर्म करना, mod x की जगह बस x² कर लो, सेम क्वेश्चन करके देखो, थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आएगा, आंसर सेम नहीं आएगा। तो यू कैन ट्राई द सेम क्वेश्चन, जस्ट mod x की जगह x² करके देख लो। तो ठीक है, समझ आया ये? सर इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे? जैसे y इज इक्वल टू एक्स मोड गिवन है सर, तो हमें सीधा x का सपोर्ट देखेंगे सर, नेगेटिव कहाँ पे, बस उस पार्ट को चेंज करेंगे, बाकी पार्ट तो सेम ही रहेगा। ओके, कर सकते हो। ऐसे भी 0 से 3 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तुम वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एक फॉर्मूला था ना, सो उसको भी यूज़ कर सकते हो तुम, जी इनवर्स, है ना, यस सर। PDF एंड डेल G/del y, इस तरह फॉर्मूला था, उसको भी यूज़ कर सकते हो तुम, इनवर्स है सबसे। तो
वो भी कर सकते हो वैसे, हाँ -1 to 1 2 उसको कर सकते हो, तो ट्राई कर सकते हो अपने तरीके से, अगर तुम्हारे पास कोई बेटर वे है तो यू कैन ट्राई। मैं 2 तरीके से किया, और भी तरीके हो सकते हैं ना, यू कैन ट्राई बाय अदर वे। यहाँ मैंने सीधा इंटीग्रेट किया है, यहाँ पहले हमने PDF निकाले फिर उससे CDF निकाला। सो यहाँ PDF यूज़ हुआ है ना डायरेक्टली, और यहाँ इनडायरेक्टली यूज़ हुआ है इंटीग्रेशन में, तो पहले CDF निकला है इसीलिए। ओके, तो मेनली जिसका डाउट था, हाँ जी श्रुति शायद तुमने पूछा था, तुम्हें समझ आया? सर हम पूछे थे, समझ कौन? गए सर। भद्रा, ओह सॉरी, ओके ओके। सर इसका जो मीडियन फाइंड करना है वो कैसे करेंगे? एक और क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो मीडियन का डेफिनेशन क्या है? दिस इज 2, सॉरी 2 कह रहा हूँ, हाफ। CDF इज इक्वल टू हाफ, तो बताओ CDF हाफ कब होगा? तो उस केस में y निकाल लो, CDF तो निकाला ही तुमने, उसको हाफ रख के देखो, तो CDF ऑफ y इज हाफ, मतलब प्रोबेबिलिटी है ना, ये दूसरे तरीके से बोल सकते हो, जो भी तुम्हारा y का वो आया है। सो लाइक सपोर्ट क्या है, स्टार्ट 0 से 0 to y, एफ वाई ऑफ इक्वल टू हाफ, तो ऐसा क्या लोगे, तो ऐसा हो जाए, तो PDF भी तुम यूज़ कर सकते हो, तो y एक्चुअली फाइंड करना है, तो जो भी ऐसा y आएगा है ना, तो यू कैन टेक समथिंग एल्स, यहाँ तुम चाहो तो m ले लो, चाहो तो वो m मीडियन होगा इस तरीके से, यहाँ भी मैं m लिख सकता हूँ y की जगह, तो वो चीज़ है, मतलब y वही बात है। तो y का CDF हाफ कब आएगा, यू कैन चेक, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा, y अगर 1 रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो इस CDF में y इज इक्वल टू 1 रखने पे आंसर क्या आएगा, इसमें ध्यान रखो, इसमें y को 1 रखो, यू पुट y इज इक्वल टू 1, तो y1 कहाँ पे, मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, यू कैन इंक्लूड हेयर ऑल्सो, तो y को 1 रखने पे CDF की वैल्यू क्या आती है, 1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ, वही मेरा हो गया मीडियन। सो fy ऑफ 1 इफ यू फाइंड यू विल गेट हाफ, इसका मतलब है कि 1 इज मीडियन। ओके, 2010 में नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 24. कौन सा पार्ट? A. फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू डिजिट इनपुट, 12th क्लास का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है, देखते हैं। चलो ट्राई करते हैं, कुछ हो सकता है। 24A, एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, एंड दूसरा है वाई स्क्वायर इज 4x, ठीक है, x, आप बनाओ इसका, क्या होता है, 3 स्क्वायर है ना, तो x पे 1 2 3 1 2 3 रफली बना देता हूँ, √2 है ना, इस तरह से 1 2 3 होगा, तो 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मान लो इस तरह है, रफली है ना, ये एक्चुअली इलिप्स बनाना था ठीक ठाक, तुम इस तरह से बना लेना। अब बोला क्या है, सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्चुअली ये वाला √2 होगा, इधर -√2 होगा, और ये वाला 3 है, इधर -3 है, और वाई स्क्वायर बराबर x है, क्या होगा ग्राफ से किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x के अबाउट या y के अबाउट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो x एक्सिस का राउंड होगा या y एक्सिस का राउंड होगा,
x के अराउंड। तो जिसकी पावर 1 है उसके अराउंड। तो इस तरह से मैं रफली बना रहा हूँ, तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तुम दोनों को सिंप्लीफाई करो पहले। तो वाई स्क्वायर की जगह एक्स रख दो, तो मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स रख दो, एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करके पहले एक्स निकालो ताकि उससे एक्जैक्टली मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट समझ आ जाए। सो 2x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 18। सो 2x स्क्वायर, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। इंटरसेक्शन को कैसे निकालते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइज करो। 18 टू जा 36 माइनस 36, बताओ कैसे फैक्टराइज करोगे। 12 3 जा 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लो, x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 6 एंड 2x माइनस 3, चेक करना कैलकुलेशन। सो x इज आइदर माइनस 6 और x इज 3/2। ठीक है, तो -6 तो नहीं होगा, मतलब -6 बहुत पीछे चला जाएगा आई थिंक। तो और अच्छा, -6 पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, वाई स्क्वायर कभी -6 हो ही नहीं सकता। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स वाई एक्स वी गेट 3/2। और एक्स जब 3/2 है, सो जब x 3/2 है तो y क्या होगा। तो यहाँ तुम्हें दे रखा है वाई स्क्वायर इज x, तो कॉमन पॉइंट है, तो y इज रूट x, तो y जो होगा रूट अंडर 3/2। तो इस तरीके से ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो ये जो पॉइंट आ गया तुम्हारा, यहाँ जो भी पॉइंट होगा 3/2 होगा। तो रफ ग्राफ बनाया इसलिए मैंने, है ना, एक्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब रफली मैंने बनाया हुआ है। तो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 1.5 3/2। ओके, अब पूछ ये रहा है तुमसे 3/2 रूट अंडर 3/2। तुमसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू रीजन बिटवीन दिस। तो बताओ छोटा वाला रीजन कौन सा है दोनों के बीच का, ये वाला, ये होगा ना जी। हाँ सर। तो एरिया निकालो, एरिया कैसे निकालते हो दो कर्व के बीच का। एरिया इज इक्वल टू अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, बस तुम लिमिट चेंज कर दो। यहाँ तुम्हारा मतलब सिमेट्रिक होता है, जितना इसका एरिया का उतना इसका आएगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। तो तुम 2 टाइम ले लो एंड सर x के अबाउट कर दीजिए ना, x मतलब x के पैरेलल एक ही बार लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसे ऐसे करना है तुम्हें, डबल इंटीग्रल से करना है। ठीक है, मैं सिंगल इंटीग्रल सोच रहा था। ओके, तो डबल इंटीग्रल से करना है, यू टेक द स्ट्रिप लाइक दिस। सो कर्व देख लो क्या क्या है ना, फिर वो इंटीग्रेशन रह गया। y लिमिट क्या है, स्क्वायर। सो यहाँ तो ऊपर वाला तुम्हारा है √3/2, इधर है -√3/2। सो y की लिमिट होगी -√3/2 से +√3/2, और x की लिमिट होगी, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहले dx/dy। तो x की लिमिट क्या होगी, तो x, ये मैं स्ट्रिप मैंने x एक्सिस के पैरेलल लिया है, तो लेफ्ट एंड पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, तो ये कर्व पैराबोला है, तो y की वैल्यू है √x। नहीं, मुझे x की लिमिट लेनी है ना, सॉरी, y स्क्वायर। मतलब जो लेफ्ट कर्व है ना, देखो ये लेफ्ट कर्व है, तो यहाँ पे उस पे x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, और ये राइट वाला कर्व पे x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से तुम्हें अब x निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x तुम अगर फाइंड करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक 9/2 रूट अंडर में, है ना, क्योंकि ये पूरा रूट में आएगा, 9/2 का रूट और 1 माइनस कितना होगा, हम x निकाल रहे हैं ना, सो 2 माइनस वाई स्क्वायर। चेक करो, ये पूरे का रूट आएगा इस तरह से कुछ। तो लिमिट इज x बराबर वाई स्क्वायर टू x बराबर रूट अंडर 9/2 2 माइनस वाई स्क्वायर। वही बात है, तुम जैसे बोलो, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। डबल इंटीग्रल से, सिंगल इंटीग्रल से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, राइट कर्व का y माइनस लेफ्ट कर्व का y, वही चीज़ है, 9/2 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन देख लेना इसका, यही आएगा ना।
सो 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, हाँ, तो माइनस वाई स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन रह गया इसका, डी वाई, वाई की लिमिट है माइनस ऑफ, सर अगर उन्होंने स्मॉलर वर्ड नहीं दिया होता तो फिर भी यही रीजन होता ना। इनक्लोज बिटवीन बोला है, फिर तुम्हें है ना, फिर कंफ्यूजन होता है इस साइड या उस साइड वाला, तो है ना, फिर जैसे इन्होंने स्मॉलर बोल दिया तो राइट साइड वाला हो गया स्मॉलर, लेट्स। अगर ऐसे कुछ देगा ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देगा, फर्स्ट सेकंड या समथिंग, वरना फिर कंफ्यूजन होगा कि इस साइड का लेना है इस साइड का लेना है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इन दैट केस कोई भी निकाल सकता है कोई वैसे, इसीलिए उसने स्मॉलर दिखा है। अब इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन आता ही है, यहाँ स्पेशल फार्मूला लग जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर जी माइनस एक्स सर फार्मूला। हो जाएगा। सर सिंगल इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे? ये सिंगल इंटीग्रेशन यही किया है, नेक्स्ट वाला टर्म वही है, राइट कर माइनस लेफ्ट कर, 12th क्लास में फार्मूला है। जब दो कर्व के बीच का फाइंड करना हो, तो अगर एक्स के अबाउट ले रहे हो तो अपर कर्व मान लो एफ एक्स है, ये जी एक्स है, सो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी। अगर कुछ इस तरह का ग्राफ है ना, ये कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है मान लो, तो इधर मतलब जैसे ये तो था एक्स के पैरेलल में ले रहा हूँ, इधर वाई के पैरेलल टाइप से, तो स्ट्रिप में एक्स एक्सेस ऐसे ले रहा हूँ, तो ये होगा सम फंक्शन ऑफ लाइक जी वाई और ये एफ वाई, मतलब ये एक्स बराबर, फिर डी वाई हो जाएगा, वाई का लिमिट लग जाएगा। ये वाई बराबर है, वही तो चीज़ ये है तो वही चीज हो गया ना, वो वहां से भी करेंगे तो सेम ही आएगा। जी, दोनों सेम ही बात। तुम डबल इंटीग्रल लगाओ सिंगल इंटीग्रल लगाओ, बात सेम ही है। डबल इंटीग्रल जनरलाइजेशन है, सिंगल इंटीग्रल पर्टिकुलर है, वही चीज़ है, वही किया, पर राइट का माइनस लेफ्ट का, वी कैन सी है, वही हुआ है। सर इसको पोलर से भी किया जा सकता है क्या? मतलब इसको सर्कल बना देंगे, पैराबोला है तो सर्कल बना देंगे और वहां से। पोलर से क्यों इंटीग्रेशन करोगे इतना, पोलर वो 2 वेरिएबल में करते हैं, पोलर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो और लंबा हो जाएगा, वो और आर थीटा आ जाएगा, फिर ठीक है, करने में आंसर तो वही आएगा, डी एक्स डी वाई को आर डी थीटा डी वाई लिखो, फिर वहाँ इंटीग्रेशन फंसेगा तुम्हारा रूट में, तो उतना ही टाइम लगना है, पोलर से भी कोई आसान नहीं होगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 2010 में कोई और नेक्स्ट डाउट नहीं है? 18 सर। Okay. Let the joint PDF of continuous random variable x and y be this. Okay. तो पूछ रहा है कि the conditional PDF of y given x. तो कंडीशनल PDF ऑफ y गिवन x, ठीक है ना, तो मुझे निकालना है y गिवन x, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से f ऑफ एक्स वाई ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ x, तो मुझे ज्वाइंट पता है, आई थिंक, हाँ ज्वाइंट पता है, तो मुझे x का मार्जिनल चाहिए होगा, तो मार्जिनल निकाल लो, तो मार्जिनल तो निकालना आता होगा आप लोगों को। सो एफ एक्स ऑफ एक्स, सो जो डबल इंटीग्रल है पहले उसको सॉरी जो ज्वाइंट है उसको इंटीग्रेट कर लो y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो y की लिमिट क्या है, अब यहाँ देखो ध्यान से, y की लिमिट क्या लेंगे जी, एक्स टू इन्फिनिटी। है ना, y के लेफ्ट और राइट देखो जस्ट, सो x टू इन्फिनिटी, सो यू हैव टू टेक x टू इन्फिनिटी। अब ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन करो, मुश्किल नहीं है, बस मैं हिंट देता हूँ कि तुम स्टैटिस्टिक्स डायग्राम का करो तो ईजी होएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे कोई PDF आएगा, फिर क्या होगा, ये एफ एक्स आ गया, तो यहाँ से मुझे ये मिल गया, क्या मिल गया, y गिवन एक्स वाई, तो कुछ नहीं करना अब, ये मुझे पता है और ये हम यहाँ से निकाल लेंगे और डिवाइड करना है। सो एफ एक्स वाई अपॉन एफ एक्स ऑफ एक्स, ये एफ एक्स ऑफ एक्स कहाँ से आएगा, यहाँ जो भी टर्म आया होगा यहाँ पे, यहाँ जो भी आएगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और ये एफ एक्स वाई मुझे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, वो पुट कर दो, तो ये आ जाएगा, पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। तो आई थिंक मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग कर सकते हो, नहीं हो फिर नेक्स्ट क्लास दोबारा पूछना अगर नहीं हो तो, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन इज नॉट अ बिग डील, वन वेरिएबल है, सिंपल
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है और ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए हो जाता है। तो कोएफिशिएंट कुछ एक्स के साथ रहेगा तो उसको डिवाइड कर दो, तो मुश्किल नहीं है, फिर तुम्हें लिमिट लेना है एक्स टू इन्फिनिटी, तो कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टर्म जो है एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये थ्योरेटिक क्वेश्चन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। सो कोई मुझे फॉर्मूला बताओ कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई। मतलब कोवेरिएंस एक्स वाई, हाँ ठीक है, कोवेरिएंस हो गया एक्स वाई का, ओके, अंडर रूट बाय वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, ओके। तो अब क्या जरूरत है हमें, ई एक्स ई वाई, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, ई एक्स तो निकल जाए क्योंकि आपने एफ एक्स फाइंड कर लिया है, तो ई एक्स यहाँ से निकाला जा सकता है अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तो। ई वाई के लिए क्या हमें एफ वाई फाइंड करना पड़ेगा, मतलब मार्जिनल ऑफ वाई फाइंड करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर कंडीशनल पता है तो कंडीशनल को भी यूज़ कर सकते हैं ना, हमारे पास एक तरीका है। देखो चूंकि एक्स का हमने पीडीएफ निकाला हुआ है तो यहाँ से ई एक्स निकाला जा सकता है, ओके, एक्स टाइम जो पीडीएफ एक्स का आएगा, सो वी नो द डेफिनेशन, एक्स टाइम एफ एक्स ऑफ एक्स अगर फाइंड कर लिया तो इससे निकाल सकते हैं। और इस केस में लिमिट क्या रहा होगा एक्स का, एट लास्ट एक्स का लिमिट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ लिमिट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि वाई तो खत्म हो गया है, तो इससे ई एक्स आ जाएगा। ई वाई के लिए जरूरी नहीं है कि तुम वाई का पीडीएफ निकालो, तो वी हैव वन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था ये डबल एक्सपेक्टेशन वाला, बताओ कोई। डबल एक्सपेक्टेशन y given x, ई ऑफ वाई गिवन एक्स, ठीक है। सो ई ऑफ वाई गिवन एक्स हो जाएगा, वाई गिवन एक्स का मुझे पीडीएफ पता है यहाँ से, और उसका मीन एक्चुअली ये एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप आ जाएगा, तुम देखोगे तो कोई स्टैंडर्ड टाइप आ जाएगा, डबल एक्सपोनेंशियल। तो उससे निकालना, ये निकालना आसान हो जाएगा। ये एक्स के टर्म में कुछ आएगा, फॉर एग्जांपल हमने देखा था ये कुछ आता है एक्स प्लस बीटा, इस तरह से आएगा, तो ये हो जाएगा ई एक्स प्लस बीटा, और ई एक्स आपने यहाँ से फाइंड किया होगा तो यहाँ से आपका वो मिल जाएगा, ठीक है, ई एक्स फाइंड किया होगा ना, तो वो पुट कर दोगे तो यहाँ से मिल गया मुझे ई वाई। फिर जरूरत क्या पड़ेगी, ई एक्स स्क्वायर की, तो ई एक्स स्क्वायर तो यहाँ से भी निकाला जा सकता है अगर चाहो तो, ई एक्स स्क्वायर है ना, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर, डेफिनेशन यूज करके देखना 0 टू इन्फिनिटी। और अगर सॉल्व ना हो तो ऑनेस्टली नेक्स्ट क्लास में बता देना दोबारा, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ से निकाला जा सकता है, और एक्स और एक्स स्क्वायर हमारा वो हो गया, अगर एक्स और एक्स स्क्वायर फाइंड हो गया तो वेरिएंस आ जाएगा ना, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा, तो वेरिएंस तो आ गया, वाई का वेरिएंस कैसे आएगा, y तो में भी कंडीशनल यूज कर लेंगे। वेरिएंस वाई का डेफिनेशन क्या है, ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर, तो ई वाई तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, अब ई वाई हमने फाइंड कर लिया है, तो ई ऑफ वाई स्क्वायर रहता है, तो ये निकालने के लिए मुझे रहता है कि ई वाई स्क्वायर कैसे आएगा, है ना, ये ई वाई स्क्वायर कैसे आएगा, तो मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा इसका प्रिंट करके, तो ई ऑफ वाई स्क्वायर कैसे आएगा, तो सेम लगा दो फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स। अच्छा इसका डेफिनेशन क्या होगा अगर इसको तुम लगाना चाहो, तो ये हमें वाई स्क्वायर एक्स का इसका पीडीएफ निकाला जा सकता है ना, पहले इसको अलग से फाइंड करना पड़ेगा। वेरिएंस ऑफ y एक कंडीशनल के टर्म में भी होता है ना फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। ओके, सो इफ यू वांट टू यूज वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। दूसरा फॉर्मूला है वेरिएंस, अच्छा ये अगर यूज ना करना चाहो, ओके, सो वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस
प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y given x। चेक कर लो सब लोग, यही है ना फॉर्मूला। सो ओके, इफ यू यूज दैट। तो दिख नहीं रहा है हमें। दिख नहीं रहा है सबका? स्क्रीन दिख रहा है क्या? जो लिखे हैं फॉर्मूला वो नहीं दिख रहा है। ओके, अभी दोबारा शुरू करता हूँ। ये वाला ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा पहले भी। एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ हाँ वाई वो गिवन तो एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स दिस। तो इससे वेरिएंस वाई आ सकता है, तो रह क्या गया? ई ऑफ एक्स वाई। तो ई ऑफ एक्स वाई तो डायरेक्टली पीडीएफ से आ जाना चाहिए। जो ज्वाइंट दे रखा है मुझे, ज्वाइंट तो क्वेश्चन में गिवन है, तो ज्वाइंट को यूज करके ई एक्स वाई आ जाएगा, है ना। सो अगर ई ऑफ एक्स वाई की ज़रूरत है, सो वी कैन यूज एक्स वाई टाइम पीडीएफ ऑफ एक्स वाई, तो इससे आ जाना चाहिए। तो ये सब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहा होगा, क्योंकि तब सब्जेक्टिव आते थे, ठीक है, 21 मार्क्स का, तब इतना लंबा पूछता था। यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछेगा एक साथ एक क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा। इज इट? सर यहाँ पे आपका x प्लस बीटा कैसे आया? एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बीटा। नहीं वो तो मैं गेस किया हूँ, मुझे पता नहीं, मैंने कहा इस तरह से कुछ आएगा। जो सॉल्व पीडीएफ किया। पे आ रहा है, कंडीशनल पीडीएफ आ रहा है, वो आ रहा है एक्सपोनेंशियल बीटा। तो सर वहाँ पे तो मीन एक्सपोनेंशियल डबल एक्सपोनेंशियल, तो वहाँ से तो मीन उसका x होगा ना सिर्फ, बीटा तो पता नहीं कैसे आ रहा है। एक्चुअली तुम दोबारा अच्छे से सॉल्व करके देखना। कंडीशनल पीडीएफ एक बार लिखिए ना, 1/बीटा e के पावर वाई गिवन एक्स है ये। हाँ y गिवन x 1/बीटा e के पावर y माइनस x अपॉन बीटा माइनस में। और रेंज है मेरा y का x टू इंफिनिटी। और डबल एक्सपोनेंशियल में मॉड होता है, और y का रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो उस केस में यहाँ पे y माइनस जो x है, वहाँ पे y माइनस। तो मुझे जेड का एक्सपोनेंट वो बताओ। इस डिस्ट्रीब्यूशन को देख के मैंने जेड नाम दे दिया वाई माइनस एक्स को, तो 1/बीटा ई की पावर माइनस जेड वाई बीटा है, तो इसका मीन क्या होगा? बीटा इस वाले का मीन क्या होता है? बीटा 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 होता है। यहाँ से ई ऑफ एक्स तो गिवन है ना, तो मेरे को एक्स कुछ गिवन होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी। एक्चुअली वाई माइनस एक्स मैंने रीनेम किया, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया? बीटा। सो ई ऑफ वाई विल बी व्हाट? ठीक है, चलिए y गिवन x है, क्योंकि x गिवन था, तो यू मे राइट हेयर y गिवन x, क्योंकि ये y एक्चुअली क्या है, y गिवन x के लिए y यूज हुआ है, सो दैट y इज देयर। तो ऐसा कुछ आएगा। मैं वहाँ क्या लिख रहा था? अच्छा, जो वो जनरल पीडीएफ जो होता है मेरा डबल एक्सपोनेंशियल का, जो सबके लिए वैलिड होता है, वहाँ से अगर देखेंगे तो वहाँ से क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ से कहाँ नहीं आ रहा, वहाँ से भी तो आ रहा है। y गिवन x एक्चुअली, ये जो पीडीएफ एक्चुअली ये y यहाँ पे y गिवन x के लिए है, तो ये तुम्हें जो मिल रहा है यहाँ तुम्हें जो मिलेगा ये y गिवन x का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि x गिवन है। तो उस केस में डबल एक और एक्सपोनेंशियल लगा लोगे तो y ही हो जाएगा। तो जो लास्ट में लिख रहा था वो ये हो जाएगा। एक बार और एक्सपोनेंशियल लगा लो इस पे एक्सपोनेंशियल जब एक बार और पुट करोगे तो लेफ्ट साइड तो ई वाई बन जाएगा और राइट साइड वैसे ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है। कौन सा जनरल से तुम्हें प्रॉब्लम है? सर वहाँ पे बस मॉड में होता है, मतलब e के पावर जो है ना वो मॉड में रहता है, और रेंज मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहता है।
अरे तो उसका स्टैंडर्ड उसका कोई यहाँ यूज़ नहीं हुआ, सिंपल है, तुम जानते हो 1/बीटा ई की पावर माइनस x/बीटा होता, तो इसका मीन बीटा है, सिंपल। और अगर मेरा ठीक है तो इसका मुझे EX पता है बीटा है, और अगर मुझे कहीं PDF ऐसा मिलता है कि 1/बीटा ई की पावर माइनस, तो यहाँ मॉड तुम क्यों अलग से लगाओगे? मान लो ऐसा है कि y माइनस समथिंग लैम्डा अपॉन बीटा, अब तुमसे पूछ दिया EY बताओ, सो EY बताओ पूछ देगा, तो हम क्या करेंगे, इसको रीनेम कर दो, y माइनस लैम्डा जो है एक नया रैंडम वेरिएबल है मान लो, तो y माइनस लैम्डा का मीन क्या है यहाँ से, मतलब तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो तो y माइनस लैम्डा का कुछ नया नाम दे दो, जैसे मैंने z दे दिया तो w दे दो, तो अब ये w का वो आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर फाइंड करोगे तो w ही आएगा, आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 हो जाए। तो ई ऑफ डब्ल्यू क्या हो, ई ऑफ डब्ल्यू क्या है, बीटा है, तो डब्ल्यू क्या तुमने किसको रीनेम किया है, ई ऑफ वाई माइनस लैम्डा को रीनेम किया है, यहाँ से वाई का क्या आ जाएगा मीन, लैम्डा प्लस बीटा, बस इतना ही याद रखो, ये माइनस लैम्डा ये क्या करेगा, ये थोड़ा बीटा उसमें मीन में कंट्रीब्यूट कर देगा बीटा, मतलब लैम्डा ऐड करवा देगा, जो भी इसका मीन है उसमें। ओके सर। और किसी को कुछ डाउट है? तो ये मैंने पूरा थर्ड पूछना है, थर्ड। थर्ड देखते हैं। क्या पूछना है इसमें? सर लिमिट कैसे लेंगे? द वैल्यू ऑफ दिस, तो पोलर से करके देखो, पोलर से ट्राई किया, कौन सी लिमिट, लिमिट तो दिया हुआ है ना। नहीं, पोलर में लिमिट कैसे लेंगे? पोलर में क्या करते हैं, एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स बराबर तुम्हें पता है क्या होता है, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा, तो एक्स को जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है आर कॉस थीटा रखो, वाई को क्या रखते हैं, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन देखो। और भी तरीके हो सकते हैं ना, तुम अपना दिमाग से करो, तो मान लो इस तरीके से अगर करें हम 1/2 पाई एंड ये हो गया तुम्हारा e की पावर माइनस, और ये है हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई को कन्वर्ट करते हैं जब पोलर में तो क्या बनता है, डी एक्स डी वाई बनता है आर डी आर डी थीटा, और आर की लिमिट क्या है यहाँ पे, तो अब तुम यहाँ से ग्राफ बनाओगे, ओके, और तुम इसको वो कर सकते हो, ओके, बट डायरेक्टली इंटीग्रेट करना मुश्किल है नहीं, इसको तुम अगर ब्रेक भी कर लोगे तो e की पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। ओके, सो व्हाट विल द लिमिट, जिन लोगों ने सॉल्व किया है, सर 0 to infinity होगी। तो इसका तुम अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करो बाय द वे उस रीजन का, तो क्या होगा, x जो यहाँ पे है, जो x तुम्हारा है वो है माइनस इन्फिनिटी टू वाई, माइनस इन्फिनिटी टू वाई, और y जो है वो 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, y जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर ग्राफ बनाना भी चाहो तो रफली मैं बनाता हूँ, y और x तो ये लाइन है, और x लेस देन वाई है, तो x लेस देन वाई का मतलब क्या हुआ, सो जैसे इधर कोई पॉइंट है 0,1 हो गया, तो x लेस देन वाई और पोलर एडिशन हो गया, ओके, नीचे x मोर देन वाई, तो पोलर एडिशन है, और x की वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी टू वाई, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू वाई, सो इस तरह का ये रीजन है, और y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये हाफ रीजन है, ओके। देन तो क्या करोगे, अब लिमिट क्या लेंगे हम, r का लिमिट क्या लिया तुमने, सर 0 to infinity। ओके, एंड रेडियस 0 to इन्फिनिटी है, और थीटा, फिर π/4 to 5π/4। तो यहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि ये y बराबर x है, सो दिस इज योर π/4, और यहाँ आगे जाओगे तो ये 90 ऐड हो गया, सो दिस एंगल इज, मतलब वैसे एंटी क्लॉकवाइज में है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो π/4 प्लस ये पाई हो गया, तो 5π/4,
ओके तो एंगल यहाँ से स्टार्ट ले रहे तुम, सो आर यू कंसिडर 0 to इन्फिनिटी, है ना, मतलब वो वाला पार्ट ले रहे हो, रेडियस है ना, रेडियस ये वाला पार्ट है ना, क्योंकि इसका एंड तो है नहीं, तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा, सो आर होता है डिस्टेंस, वो रीजन जो भी है, सो ओरिजिन से डिस्टेंस देखो तो ये अनबाउंडेड रीजन है, सो रेडियस इज 0 to इन्फिनिटी। अब थीटा क्या है, मतलब वो एरिया जो तुम्हारा पोर्शन है वो कितना एंगल कवर कर रहा है, तो यहाँ से ये वाला रीजन है 5/4 to 5/4। ओके अब इसे इंटीग्रेट करो, इजीली हो जाएगा, आर यहाँ है ही अवेलेबल, तो -12r² को रीनेम कर दो, मतलब सब्सटीट्यूशन कर लो और हो जाएगा, हो जाएगा जी निशान। यस सर। सर 12 और बता दो। इसको डायरेक्ट ग्राफ से भी बोल सकते हैं, हाफ। ओके तो दिख रहा है हाफ रीजन है, मे बी तुम इसको ऐसे 1/√2 टोटल एरिया पाई, 1 है तो अच्छा तुम इसको ऐसे स्टैंडर्ड नॉर्मल से भी रिलेट कर सकते थे, 1/√2 पाई e -12 इस तरीके से भी वो हाथ से बंद। स्टैंडर्ड नॉर्मल से यू कैन रिलेट इट। सो दो PDF को इसने मल्टीप्लाई किया है, एंड 1/2 पाई बाहर इसीलिए है क्योंकि 1/√2 पाई इंटू 1/√2 पाई है, सो वहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, इसने हाफ पोर्शन कंसिडर कर लिया है उसका। तो पूरा स्पेस अगर होता मतलब माइनस से माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अगर दोनों लिमिट होता तो आंसर 1 हो जाता, सो बट चूंकि इसने आधा ही कंसिडर किया है तो हाफ हो जाएगा। ओके दिस इज वन ऑफ द वे, एंड अदरवाइज अभी हमने किया है, और भी तरीके हो सकते हैं, और हमारे पास और क्या तरीका हो सकता है, थर्ड क्वेश्चन था ना, ओके स्टैंडर्डाइज करके भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y, फिर x को एक साइड ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, वहां से स्टैंडर्डाइज करके। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में तुम सोच सकते हो, ये 6y वो था स्टैंडर्ड नॉर्मल, एंड ये कुछ और नहीं, ये जो लिखा है एक्चुअली जो था वो था प्रोबेबिलिटी, अगर तुम ये पूछ लूँ XY बोथ आर नॉर्मल 0 1 जो मैं कह रहा था, और अगर मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस, तुम ग्राफ बनाओगे तो इसका भी ग्राफ वही होगा, ठीक है, x लेस देन y है तो ऊपर वाला पोर्शन होगा, इसका आप पूछ रहा है तुमसे, तो ये जो है f(x, y) dx dy है ना, और ये -∞ to y लिया है, -∞ to +∞ इस तरीके से, तो ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन y है, तो या तो x लेस देन y या x मोर देन y होगा, तो इसलिए इसका आंसर हाफ होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है और दोनों सिमेट्रिक एरिया, लेफ्ट लोअर हाफ उतना ही है जितना अपर हाफ है, तो x लेस देन y और x मोर देन y दोनों का सम जो होगा 1 होगा, और दोनों का आंसर सेम आएगा, so that's why it will give you half. Okay, so other way is this, ठीक है, अदर वे बाकी एक तरीका ये भी है, मैथमेटिकली ये मैथमेटिकली किया गया है ना, और ऊपर वाला जो है स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके तुम कर सकते हो नॉर्मल को। ओके 12 XYB IID binomial random variable with parameter in is equal to half, so XY दो बाइनोमियल है और जिसका पैरामीटर है in, हाफ, और Z अनदर बाइनोमियल है जिसका पैरामीटर है 2.5। X is binomial, n half, y is binomial n half, and z is binomial 2.5। ओके तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है x इज इक्वल टू वाई का क्या होगा, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई का मतलब क्या, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, सो एक्स वाई बोथ कैन टेक, x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू n, and y can also take 0 to n, z can take value 0 1 2 up to 2n,
एंड सो मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, मान लो कोई नंबर r ले लो और y इज इक्वल टू r, दोनों इक्वल है. दिस r कैन बी एनी नंबर बिटवीन 0 to n, है ना. मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, या x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, इस तरह से यू कैन राइट इट. सो r कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, है ना. 0 0 प्लस 1 1 प्लस 2 2, तो एक साथ लिखने पे हमने समेशन लगा दिया. अब हमें तो दोनों का पीडीएफ पता ही है. ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको इंडिपेंडेंट है, आईआईडी है तो इंडिपेंडेंट भी है, तो इंडिपेंडेंट होने से क्या फ़ायदा होता है, ज्वाइंट को हम अलग अलग कर सकते हैं. सो आर 0 to n है तो इसको तुम अलग अलग कर सकते हो बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट. सो y इज इक्वल टू आर. अब अब क्या होगा, समेशन r फ्रॉम 0 to n, और इसका पीडीएफ क्या है, तो पीडीएफ तुम्हें पता है बाइनोमियल n हाफ है. सो n c r p की पावर r q की पावर n माइनस r, तो टोटल मिलके ये हो जाएगा n c r p की पावर r, है ना, और q, मतलब p q दोनों हाफ हाफ ही है, तो इसीलिए मैं टोटल ले लेता हूँ, ये हो जाएगा. सो ये एन सी आर का होल स्क्वायर हो गया और 1/2 की पावर n प्लस n 2n. ओके, अब क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से किसके इक्वल है, z बराबर 0, z बराबर n, z बराबर 2n माइनस 1, z बराबर n प्लस 1. सो बस तुम्हें अब ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज दिस, क्योंकि ये तो r से फ्री है तो इसको तुम बाहर भी निकाल सकते हो. तो ये तुम्हारा 1/2 की पावर 2n हो गया, बाहर है. और यहाँ क्वेश्चन ये है समेशन एन सी आर का होल स्क्वायर है, r फ्रॉम है 0 to n, और ये हाफ की पावर 2n भी बाहर है, 1/2 की पावर 2n. तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इसका मतलब है हाफ की पावर 2n है, और इसको तुम ओपन करोगे तो कुछ नहीं, एन सी 0 होल स्क्वायर, एन सी 1 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, एन सी एन होल स्क्वायर. अब ये बाइनोमियल थ्योरम में एक फॉर्मूला होता है इसका. तो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है, तो नहीं याद है तब से याद टू की रखना. पावर n, इसका सम क्या होता है, 2n 2 की cn. पावर n. 2n आएगा. सो 2n को ओपन करोगे तो यही आएगा. इसका प्रूफ का सिंपल तरीका ये है कि 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपैंड करो, 1 प्लस एक्स की पावर n को दोबारा एक्सपैंड करो, थोड़े अलग तरीके से, लाइक तुम x प्लस 1 को एक्सपैंड करो, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट साइड ये रहेगा 2n और राइट साइड रहेगा ये वाला. मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपैंड करो, जिस रूल से कर रहे हो उसी रूल को x प्लस 1 को एक्सपैंड करो. तो पता है सिमेट्रिक होता है, NC0 और NCn सेम रहता है. तो यहाँ पहला टर्म में NC0 आएगा और इस वाले में पहला टर्म में NC तुम n रखना, या उससे उस हिसाब से ओपन करना जैसे भी तुम्हें समझ आ रहा है. फिर करस्पॉन्डिंग मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे जब x की पावर n का कोएफिशिएंट ढूंढोगे तो एक टर्म में ये आएगा, दूसरे टर्म में ये आएगा. तो ये प्रूफ बता रहा हूँ उसका, अगर चाहिए तो ये फॉर्मूला होता है NC0 स्क्वायर, NC1 स्क्वायर सो ऑन. तो इसका स्क्वायर करने पर ये आ जाता है. अब तुम देख लो सिंपली, तो ये हो गया 2NCn हाफ की पावर 2n, तो 2n का मतलब रखते n और हाफ की पावर n. सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू n एक्चुअली. ठीक है, z इक्वल n लेंगे तो ये p है, ये q है, या इसको तुम और बेटर लिखना चाहो तो यू कैन राइट 2n माइनस n. सो एन सी आर, 2NCr p की पावर r, q की पावर n माइनस r. सो r की जगह n है. तो दिस इज आंसर. ठीक है, ओके. तो आंसर इज दिस, ऑप्शन था ये, बी ऑप्शन होगा. और कोई क्वेश्चन, 19. कौन सा वाला, ए या बी? एमिली, नीचे वाला बी वाला. So x1 expected with the independent random variable with xi having a normal theta comma 1 by I. Find the MLE of theta. तो MLE में क्या डाउट है, बस उसने वेरिएंस को
फिक्स ना करके इस बार चेंज करता गया हर एक साई के लिए, तो उसके टर्म में आंसर आ जाएगा, आंसर आई के टर्म में आएगा। तो करना क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है, उसको मैक्सिमाइज करना है मैथमेटिकली। सर तो जो ई के पावर में समेशन एक्स आई माइनस थीटा होता है, तो वहाँ पे आई जो पुट करेंगे वेरिएंस, तो वो तो अलग अलग होगा ना। पहले के लिए वन टाइम्स x1 माइनस थीटा, फिर दूसरे के लिए 2 टाइम्स x1 माइनस थीटा, इस टाइप का। तो उसको सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? सो एक्स आई इज नॉर्मल थीटा 1/i। तो पहले एक एक्स आई का पीडीएफ लिख के देख लेते हैं किसी एक एक्स आई का, ठीक है। तो ये होगा 1/√2π सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, तो ये 1/i वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये नोटेशन पहले पेज पे क्लियर किया होगा, ठीक है। सो अगर मान लो कहीं कंफ्यूजन हो तो यू कैन चेक ऑन फर्स्ट पेज। अभी तो और अच्छे से क्लियर दिखता है अभी देखोगे तो। सो समवेयर दे देखो यहाँ कहीं यूज़ किया है, तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो कि सेकेंड वाला वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये नोटेशन यूज़ किया है, तो इसका मतलब है सेकेंड नोटेशन वेरिएंस है। नॉर्मल में जो सेकेंड वेरिएबल है, जो सेकेंड पैरामीटर है, वो वेरिएंस, तो 1/i इज अ वेरिएंस। यहाँ होगा 1/i का रूट हो जाएगा ना, रूट अंडर 1/i, मैं नीचे ही लिख रहा हूँ सिग्मा e की पावर -12 x माइनस थीटा अपॉन 1/i का रूट ले लो, अभी ऐसे लिख देता हूँ, और इसका होल स्क्वायर। तो ये एक का किसी एक एक्स आई का पीडीएफ इस तरह से होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर √i, नीचे √2π e की पावर -12 x माइनस थीटा, और ये भी √i प्रोडक्ट में ही हो जाएगा। तो स्क्वायर करके बाहर करना है तो बाहर कर लो, तो लाइक i/2 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ हो गया xi, तो यहाँ xi है xi माइनस थीटा होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, ये तो हमारा किसी एक xi का पीडीएफ है। लाइक्लीहुड फंक्शन में हम करते क्या है, L थीटा, सो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ fxi i फ्रॉम 1 to n, प्रोडक्ट कर देते हैं। सो प्रोडक्ट करेंगे, सो 1 जो √2π है इसका पावर तो n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट रहेगा √i का, मतलब 1 × 2 × 3 इस तरह रूट में है, और e की पावर, इसको एक टर्म रखो ऐसे। अब जब तुम एक्सपोनेंशियल में जाओगे तो -12 समेशन i टाइम xi माइनस थीटा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, तो थोड़ा अगर और सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, अदरवाइज फिर हो जाएगा। अब ये लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा का फंक्शन आ गया। अब एल डैश थीटा निकालो, 0 पुट करो, जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वो मिली है। नेक्स्ट सर 21 क्या दिक्कत है इसमें, सर उसका वो काई स्क्वायर वो क्रिटिकल डिस्टर्ब नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सो x1 x2 xi विद i रैंडम वेरिएबल विद pdf दिस। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल थीटा है, तो 1 बाई थीटा है, सो मीन इसका थीटा होगा। ओके, फाइंड द पावर ऑफ मोस्ट पावरफुल टेस्ट। एल थीटा 1 अपॉन एल थीटा नॉट इज मोर देन के, ये होता है रिजेक्शन रीजन। सो एल थीटा 1 का मतलब साइज क्या है, 5 है। ओके, सो 5 है, तो लाइक्लीहुड तुम लिख सकते थे, सो लाइक प्रोडक्ट पहले अलग से लिख लूँ, सो लाइक्लीहुड फंक्शन पहले लिख लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ 1 बाई थीटा e की पावर -xi अपॉन थीटा i फ्रॉम 1 to 5, ठीक है, 5 बार है। तो इसको तुम प्रोडक्ट करो तो क्या होगा, 1 बाई थीटा की पावर n, जो कि n 5 है, e की पावर -1 बाई थीटा समेसन xi i फ्रॉम 1 to 5। तो क्या होगा यहाँ पे अब, तो इसमें
तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 1/θ की पावर 5 e की पावर -1/θ समेसन xi अपॉन, सो थीटा यहाँ क्या रखना है, इसमें थीटा पुट करना है 2, तो इसमें थीटा को 2 रखना है, तो इसको तुम 2 रख दो और यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर में क्या है, h0 1 है, तो 1 पुट करोगे तो 1 ही हो जाएगा। सो 1 1 तो e की पावर माइनस समेसन xi, ओके। ये 2 की पावर 5 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 32। दिस इज मोर देन k। अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई तो करना है, सो 1/32 e की पावर माइनस, और इसको ऊपर ले आओ तो समेसन माइनस हाफ समेसन इन 5 है, ठीक है। तो फाइनली बचेगा प्लस में हाफ समेसन xi मोर देन k। सो फाइनली जो भी है एट लास्ट आ जाएगा समेसन xi i फ्रॉम 1 to 5, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सम कांस्टेंट c1 बोल दो या c बोल दो, है ना, या यहाँ से चाहो तुम उसको k1 बोलते रहो, k1 है तो इसको बाद में k बोल दो, कांस्टेंट चेंज। तो इस तरह से कुछ आया। अब क्या करना है, तो ये रिजेक्शन रीजन हो गया, रिजेक्टिंग h0 व्हेन दिस हैपेंस। तुम उसको x बार में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो यू कैन कन्वर्ट इनटू x बार आल्सो, है ना। अगर तुम्हें मर्जी हो तो यू कैन राइट x बार इज मोर देन सम अदर, मान लो ये k1 या इसको k2 बोल दो, वो k3 बोल दो, जो भी इंटरेस्ट हो उसमें कर लो। तो ये रिजेक्शन रीजन आ गया। अब अल्फा क्या दिया है, अल्फा इज 0.05, 0.05, that is probability of rejecting h0 rejecting h0 when h0 is true, ठीक है। तो अभी म्यूट कर लो, कुछ बोलना हो तो अनम्यूट करना, अनम्यूट। हाँ, तो क्या होगा, रिजेक्टिंग h0 when h0 is true, so रिजेक्टिंग h0 समेसन xi है ना, i प्लस 1 to 5 मोर देन, मतलब k बोला, चलो k ही ले लो, है ना यहाँ पे, और इसको कुछ k3 बोल दिया या कुछ नया कॉन्स्टेंट ले लो, चाहो तो c ले लो, इस तरीके जो भी वे तुम्हें फॉलो करना है। गिवन h0 is true, थीटा यू कैन कंसीडर 1। हाँ, अब यहाँ से k डिसाइड करना है, कैसे किया तुम लोगों ने, बाकी लोग बताओ। सो काई स्क्वायर वाली एक प्रॉपर्टी है ना कि एक्सपोनेंशियल को हम काई स्क्वायर में टर्न कर सकते हैं, वो यूज किया है। तो समेसन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा होगा, गामा का पीडीएफ होगा उस हिसाब से वो पर थीटा या फिर 2 थीटा कर मल्टीप्लाई। तो जो समेसन एक, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल तुम्हारा थीटा है, तो उसका जो प्रॉपर्टी होता है तो उस हिसाब से यू कैन कन्वर्ट जो एक्सपोनेंशियल जो थीटा है वो होता है गामा 1, थीटा, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब सॉल्व करोगे तो जो सम हो जाएगा, सम ऑफ क्या, एक्सपोनेंशियल, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा समेसन xi 5 का, इसका गामा क्या पैरामीटर क्या है, गामा 1/थीटा स्क्रीन पे गामा कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। ये सबके साथ प्रॉब्लम सबको दिख रहा है ना, नहीं सर दिख रहा है। चेक करो, दोबारा ज्वाइन करो चाहो तो, प्रॉब्लम तो ओके। तो समेसन xi का वो करके फाइंड करो। सर यही करेंगे ना इसमें, ये तो गामा 1/थीटा 5 फॉलो कर रहा है, इसमें 2 समेशन xi/थीटा से ये मेरा फॉलो कर जाएगा काई स्क्वायर 2 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही करना है हाँ, ना। उसके हिसाब से चेंज कर लो तुम, उसको हिसाब से इसको पैरामीटर चेंज करके
तुम दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड अपने जरूरत के हिसाब से कर सकते हो, फिर कुछ स्टैंडर्ड में फिट करके उस तरह से के आ जाएगा टेबल यूज करके। हाँ सर ठीक है, हो जाएगा। यही तो आया। देन तुम उसको जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल वाली उसको यूज करो, 2 टाइम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो एंड देन है ना 2/θ मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, इट विल बी व्हाट काई स्क्वायर 2 होगा और समेशन 5 बार है तो काई स्क्वायर 10 हो जाएगा। तो काई स्क्वायर टेबल यूज करके आई थिंक यू कैन फाइंड, तो वैल्यू दिया होगा तुम्हें पेपर में काई स्क्वायर 10 का, देन उससे वो के आ जाएगा, के आ गया तो फिर तुम के यूज करके वो निकाल लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा हिंट ये है, ये 2/θ समेशन xi, तो यहाँ हो जाएगा 2/θ के, थीटा तो 1 यूज करना है तो 2/θ हटा दो, थीटा तो 1 दिया है ना तुम्हें तो यू कैन रिमूव दैट थीटा। ओके, अब ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर 10 आ जाएगा। अब वहाँ से टेबल यूज करके ये 0.05 है। अब प्रोबेबिलिटी लाइक दिस इज काई स्क्वायर 10 मोर देन 2k, तो क्या इसको लेस देन में कन्वर्ट करूं सीडीएफ में आने के लिए? हाँ सर, क्योंकि वैल्यूज ना लेस देन के हिसाब से दी है। क्योंकि टेबल में जो होती है जैसे तो काई स्क्वायर मान लो कहीं पे नंबर होगा सपोज इस तरह से, तो काई स्क्वायर जैसे 10 कॉमा अल्फा है सपोज, सो अल्फा दिस एंड 1 माइनस अल्फा दिस, ये होता है ना। अच्छा यहाँ पे क्या नोटेशन है तो वो तुम्हें अगर दिया होगा तो बताएगा, क्योंकि दिया नहीं होगा इसलिए बताया नहीं होगा शायद। सो अगर वैल्यूज दे रखी होंगी सो दे विल टेल यू द मीनिंग। बाय द वे यहाँ दिया हुआ है, ये देखो 13 लाइन में, समझ आ रहा है। सो दिस विल बी यूज्ड, सो 0.95 ना, ये है 18.30, ये यूज होगा ना जिन लोगों ने किया है बताओ। जी सर। काई स्क्वायर 10 लेस देन 18.30, सो दैट इज 0.95। सो पेपर में दिया Yes. होगा तुम्हें, सो 0.95 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर 10 लेस देन इक्वल टू 2k। आज मेरा सो तो यहाँ पे लग रहा थोड़ा है नेटवर्क खराब है। हाँ, सो 2k इज इक्वल टू यहाँ दे रखा है 18 पॉइंट क्या 30, तो 18.30 ऐसा ले लिया। सो के यहाँ से मिल गया तुम्हें 9.15, तो क्या ये आया क्या के की वैल्यू, ये टेबल से था। अब इसके को यूज करके पावर निकाल लो, क्या होता है पावर रिजेक्टिंग H0 when H1 इज ट्रू, सेम वे में आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक जी जिन लोगों ने किया है। जी सर। तो यहाँ भी 2/θ समेशन xi कर लेना, ठीक है, मोर देन इक्वल टू मोर देन 2k हो जाएगा 2k/θ, और थीटा क्या होगा यहाँ पे 2 है। ओके, तो उस हिसाब से क्योंकि समेशन xi मोर देन के लिखा होगा, ये तो तब है जब समेशन xi मोर देन के है ना, और के तो पता ही है, के पुट कर लो। अच्छा 2 तो कट जाएगा तो डायरेक्टली यही आ जाएगा 0.48। सो आई थिंक डायरेक्टली 0.48 है ना, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये 2 थीटा 2 ही है ना, थीटा 2 यूज़ करना है। सो समेशन xi जो कि ये मतलब लेफ्ट साइड जो है काई स्क्वायर 10 हो गया, तो और मोर देन ये थीटा भी 2 है और ये भी 2 कट गया, के है तुम्हारा, लेकिन यहाँ के तो हमारा वो 9.15 है ना, के 9.15 है। सो क्या लिखूँ इसको मैं, इसको 1 माइनस करना पड़ेगा ना, 1 माइनस 1 माइनस करने के बाद 0.52 आएगा। तो 9.15
So 1 minus and 9.15 0.48 है. So घटा लो इसको, क्या होगा 0.52. यस ओके ठीक है. और कोई क्वेश्चन? ओके क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी था एक्सपोनेंशियल Hello, 1. sir. Sir, myself. Yes, I Akash. joined, can I ask question? Can I ask question other than previous year? You can ask, but not in this class. Actually, we are currently discussing the papers only. So you can send me the doubts personally, so I can help you there, or we can discuss in class. So you first have to send me the question, so I also Okay, get the time to think and solve. Okay. Okay. In group, right? Group. You can post. You can send me personally, no problem. So you can send me personally on WhatsApp. Okay. You can send in group. So Thank then you. we can discuss in next class. Okay. Yeah. No problem. You can ask Okay, anyone. thank you. So there are many good students here, so they can also help you. Yes. For that reason, I also ask. Yes. So Can if I no send one question in meeting? yes, you can. Like currently we are just completing previous year papers, but any other doubts you can send in WhatsApp group. Someone will solve and send Okay. it. Otherwise I will solve. Okay. Thank you. Yeah. Okay. So in 2010, I think no doubts are remaining. Is it? सर 22B मुझे ऐसा क्यों 23 लगता है तुम लोग अभी क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो देख के. नहीं सर, ये दोनों बना नहीं, मैथ्स का क्वेश्चन है, एक सीरीज का है दोनों. दोनों नहीं बना. ये ऊपर वाला बन गया 22B और उसके बाद 23A. A and B are sequence of real numbers such that A1 is 1 and AN has limit 3. Find the value of AN. ये तुमने वो सुना है क्या बोलते हैं उसको हम टेलीस्कोपिक सीरीज. यस सर. उसको ओपन करो क्या होगा. उसको ओपन करो n को 1 रख के देखो क्या होगा. अच्छा हो जाएगा सर. नेक्स्ट वाला थोड़ा बता दो. हो जाएगा. टेलीस्कोपिक सीरीज वाला कंसेप्ट लगाओ, कटता जाएगा टर्म, 2 टर्म बचेंगे, वो दे रखा है वैल्यू. हाँ हो जाएगा. तो आंसर इसका 3 स्क्वायर 9 - 1 8 आ जाएगा ऐसे. मैं इसमें रिलेशन खोज रहा था कि एक सीरीज बने इसका. या ओपन कर दो, टर्म्स कटते चले जाएंगे. वो हो जाएगा 23A. टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज. सो ओके, तो एक सीरीज है तो पहले तुम टेक कर सकते हो कि लिमिट 0 पे जा रही है क्या. तो 0 पे जाएगी श्योरिटी तो नहीं होगा, लेकिन अगर 0 पे नहीं जाती है तो ये श्योरिटी है कि डाइवर्स करेगी. तो क्या करना है. 0 पे जा रही. ठीक है, तो कोई टेस्ट लगाओ जी. तो कौन सा टेस्ट लगाओगे. ये है e की पावर -1/n 1 माइनस. लिमिट कंपैरिजन यूज कर किसके साथ. bn 1/n². ओके 1/n² के साथ. बट क्वेश्चन ये है कि हाँ मतलब 1/n² के साथ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे. पहले बात की लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है. So you want to say limit comparison test. So like क्या करते हो उसमें तुम लिमिट इंटेंसिटी an/bn की लिमिट फाइंड करते हो. हाँ, और अगर ये क्या आता है, कोई स्टेटमेंट बताओ मुझे. कांस्टेंट आया तो bn अगर कन्वर्स करेगा तो an भी कन्वर्स करेगा. bn अगर डाइवर्स किया तो an भी डाइवर्स करेगा. और कोई भी कांस्टेंट आएगा या नॉन जीरो कांस्टेंट आएगा. नॉन जीरो कांस्टेंट. पहले सर एक सीरीज मतलब जो भी है उसको कंसीडर करेंगे, उसके बाद ये सब का लिमिट फाइंड करेंगे bn/n. वही मैं पहले स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ मैं.
और फिर दूसरा है कि an अपॉन bn अगर 0 हो गया तो bn अगर कन्वर्स कर रहा है तो an भी कन्वर्स करेगा। और थर्ड Okay. स्टेटमेंट है कि an अपॉन bn का लिमिट अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो bn अगर डाइवर्स करेगा देन an डाइवर्स करेगा। अगर ये नहीं हुआ तो अगर bn अगर कन्वर्स कर गया तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो दूसरा टेस्ट से सोचेंगे। ओके तो सर इधर an एंड bn आवाज नहीं आई तुम्हारी। सर आप पूछ रहे थे ना an एंड bn क्या है इधर? ये तो चलो दो सीरीज हमारे पास, तो इसका क्या रिलेशन है, मतलब स्टेटमेंट क्या है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का। हमारे पास दो सीरीज है, सीरीज an मान लो चेक करना है, bn हम लोग खुद ढूंढते हैं, है ना। यस सर। हाँ, सो स्टेटमेंट क्या है इसका उसने बताया अभी। सो इज इट फाइन? सर bn यहाँ मान लीजिए ना 1 अपॉन n स्क्वायर, तो वो मेरा फाइनाइट नॉन कांस्टेंट फाइनाइट वैल्यू दे देगा। सो जो भी मान लो ऐसा आता है, कोई फाइनाइट आंसर आता है, यू वांट टू से दैट, आई थिंक देखो अलग अलग का डेफिनेशन थोड़ा सा वैरी करता है। सो तुम्हें क्या पढ़ाया रियल में सर ने? ये अच्छा सिख हमारा सीरीज जो है नॉन नेगेटिव टर्म्स वाला है, so it is terms will be non negative, so non negative जो टर्म्स है इसके, है ना, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है। सो लाइक द रेशियो यू विल सी इधर पॉजिटिव होगा कोई, मोर देन 0 होगा। सो इन दैट केस बोथ a and b and have the same नेचर, आइदर बोथ कन्वर्जेस वो डाइवर्जेस, ठीक है, इससे ही काम हो जाएगा। तो इसका हिंट ये, सर अच्छा क्वेश्चन एक्सपेंड ये तो करके फिर पता करना है कि मतलब bn क्या लेना है। हाँ, उसको एक्सपैंड करके e की पावर x का एक्सपेंशन लिख लो, हाँ हो गया। और log 1 प्लस x का एक्सपेंशन लिख लो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा लीडिंग टर्म पे आए, जो लीडिंग टर्म होता है उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड। हो जाएगा सर। Sir, how to find bn? Is there any rule to find the bn? Any trick or any rule? हाँ, yes, you can just write the expansion of e की power minus x. So using that e की power minus x, we can write expansion of e की power minus 1 upon n, and we also have the expansion of log 1 plus x. You write that, just you check the term, I think. So some relation you will get. So I have to see at first the nature of an. Yes, yes, Then I should. yes. Right. For example, I can give you a few hints. You already have seen. For example, if you get the sequence like n plus 1 by n, suppose. So here bn will choose 1 by n. Or you get something 1 upon 3 times n plus 5. So in that case also bn will choose 1 by n. Okay, in that case. Yes, yes, yes. So how to find the bn 1 by n? No, you can look by this. So like it is 1 by n. So n is the leading term here. Degree is 1 in the denominator. So suppose you get an somewhere. So I'm writing this an in the series. So we have summation an. तो an क्या है हमारे पास, जैसे मान लो ऐसा है कहीं आता है 3 टाइम n square plus 5n plus 4 suppose. So you want to test the convergence of this series. Okay. So we want to apply the limit comparison test. So we will compare with the other series bn. So bn you will choose what? So by looking at this, can you guess what bn we should choose to compare? Limit comparison test. So what is the leading term? 1 by n square. Yes, exactly 1 by n square, because n square is a leading term. Yes, yes, yes. According to that you can decide. Then limit will be finite and both will converge or diverge according to bn chosen. हाँ, और कोई क्वेश्चन है या 11 पे चले? टाइम बचा है ना, तो टाइम क्या हो गया। तो ये 2010 वाला हमने कुछ डाउट्स किए हैं, ठीक है, आधे घंटे में ही हो जाएगा, क्योंकि वो करना तो सॉल्व होता है नहीं, बस एक बार डिस्कस तो करना है, तो देख लेते हैं, ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। 2011 है ना, 11 वाला देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं, देन तुम लोगों को सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में भेजना है, फिर उसके बाद जो जो नहीं होगा वो देखेंगे, फिर भेजो जरूर, ऑनेस्टली करो, सीखने के लिए करो।
Okay, the first question is let the function f from positive real number, not positive, we'll call it non-negative real number. So f is from non-negative real number to r, function है fx x square e की power -6, then maximum value of f. ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है. f dash x निकालो, 0 पुट करो, टर्निंग पॉइंट आएगा, उस पर चेक करो. आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. आइगन वैल्यू तुम लोग, आइगन वेक्टर, सो स्टिल यू कैन फाइंड आइगन वेक्टर आल्सो. पहले वैल्यू निकाल लो, फिर वैल्यू से वेक्टर आ जाएगा. और आइगन वैल्यू देख के पता चल रहा है क्या होगा, है ना. ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो क्या होगा आइगन वैल्यू इसकी? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या क्या होती हैं? डायगोनल या 1 1 है. सो 1 विल विद आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 2, सो यू विल गेट वन आइगन वेक्टर देयर, है ना. a बराबर ax इज इक्वल टू लैम्डा x, सो av इज इक्वल टू लैम्डा v, लैम्डा इज 1, सो av इज इक्वल टू v करो, v मिल जाएगा कुछ ना कुछ. अब v में 2 एंट्री होगी, v1 v2. Okay, come to this. Third is fg vr2 are function. fx is x when x is rational, fx is sin x when x is irrational. Same for gx, x sin x into sin 1 by x when x is non-zero, and 0 when x is 0. So at x is equal to 0, both f and g are differentiable. f differentiable, g not, g differentiable, f not, and neither this. So तुम्हें differentiability check करनी है दोनों की 0 पे. ठीक है, तो एक तरीका था कि लाइक यू डायरेक्टली तुम एफ डैश एक्स निकाल लो, जी डैश एक्स निकाल लो, फिर 0 पे जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर लो. Hello, sir. यस In यस. question 4, for S1, so if I compare with limit comparison test, so what will be the Bn? There a leading term is n square, so numerator is also n square. Yes, exactly. So numerator has degree n square, denominator has degree n square. So first of all, you should think of what is the limit of an. Can you find the limit of an? What is the limit of an? It will be 1. I think 1. So you know the theorem. If an converges to non-zero number, then series diverges. Is it? We have a theorem. Yes, sir. If this is a one-way theorem, not if and only if, just one way. So if an does not converge to 0, then series an diverges. So you don't have to compare with anyone, because overall degree is actually, we also see overall degree there. So what I was telling you, overall degree, numerator has degree 0 and denominator has degree n square. Then in that case you choose 1 by n square. So Yes, here yes, numerator yes. has degree. So highest power numerator degree minus lowest power Yes, numerator yes. degree. So we see that again. You can check S2. Now S2 you can apply that rule what you were telling. So S2, what is the numerator degree? 2. And what is the denominator degree? 3. So if you cancel the degree, so 1 degree is more in denominator. So which bn you will choose to compare? Is 1 by n, obviously. 1 by n, fine. So you will take 1 by n, then you can check. Or obviously it will be divergent, because by p test it will give you, I think, divergent. Because 1 by n summation 1 by n is right, 1 by n is divergent. So with the same rule it will diverge. Okay, fifth question है. The equation x raised to power 13 minus e raised to power minus x plus x minus sin x is 0 has how many roots? Okay, तो इसके लिए तुम ग्राफिकली रफली ग्राफ बना सकते हो, अदरवाइज you can check something different, है ना. रफली you can check for like critical points, या ग्राफ से भी सोच सकते हो, ऐसे सोचना चाहो तो, या कई सारे तरीके हो सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द हाउ यू थिंक. कैलकुलस का क्वेश्चन है, तो कितने भी तरीके हो सकते हैं, तुम्हें सोचना होगा कि हाउ मेनी रूट्स आर देयर. बट इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, तो उसके हिसाब से कोई नहीं, ट्राई करना. अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में विल सी. नेक्स्ट है डी विद अ ट्रायंगल बाउंडेड बाय y एक्सिस. ओके, y एक्सिस एंड लाइन 2y इज इक्वल टू पाई, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2. ठीक है ना, y इज इक्वल टू x. तो एक ट्रायंगल है, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल. ठीक है, तो लिमिट सुटेबल लिमिट लेके इंटीग्रेट कर लेना. अब मे भी तुम्हें हो सकता है ऑर्डर चेंज करना पड़े, तो ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा. लेट x be a random sample
of size 1 from uniform theta theta plus 1 distribution. So for testing h naught h1, the critical region this has power. So again critical region given है और ये simple versus simple है, तो power size का फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. x1 x2 xn with a binomial 1 theta, मतलब बर्नौली हो गया ना, बर्नौली theta. So as an estimator of theta, t is given to you, okay, summation xi plus root n upon 2 whole upon n plus root n. So both consistent and unbiased, consistent and मतलब definition लगाओ. Unbiased को पता है, expectation of t should be theta for all theta, and consistent के लिए क्या अप्लाई करोगे, variance of t converges to 0 and expectation of t converges to theta. If that, otherwise tn should converge in probability to theta. Main definition है. So we had result कि expectation t converge करना चाहिए theta पे, मतलब अनबायस्ड नहीं भी हो सकता ना कंसिस्टेंट के लिए, और वेरिएंस टी शुड कन्वर्ज टू 0, वो अप्लाई करना हो जाएगा. 9th है x1 x2 x3 बी द नॉर्मल 0 थीटा स्क्वायर रैंडम वेरिएबल, देन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एस्टिमेटर, ठीक है, समेशन k टाइम्स समेशन मॉड xi इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा. तो ठीक है, 3 सैंपल साइज 3 का है, नॉर्मल है, ठीक है, मॉड का डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन थिंक ऑफ, एंड मतलब ई ऑफ ये इक्वल पुट कर दोगे थीटा के तो उससे के निकल आएगा. तुम्हें मॉड एक्स का थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का सोचना पड़ेगा, देन मॉड एक्स का एक्सपेक्टेशन क्या होगा वो सोचना है. तो ये कर सकते हो, है ना. ट्राई करना इसको, इस पर देख लेते हैं, डाउट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो 10th, let the random variable x and y have the joint PMF this. So EY is, तो EY निकालना है तो एक तरीका है कि अगर तुम फाइंड कर सकते हो y का जॉइंट से मार्जिनल, है ना, जॉइंट को यूज करके मार्जिनल निकालो फिर EY करो, एक ये तरीका है. अदरवाइज कुछ और भी सोच सकते हो, तब तुम इंडिपेंडेंसी अगर देख लेते हो, इफ इट इज इंडिपेंडेंट देन, बट x चूज y है तो उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, और y की वैल्यू 0 to x है. ओके, समहाउ कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, सो यू कैन थिंक. So x1 x2 be the IID Poisson random variable with mean 1, then the maximum of x1 x2 is more than 1. तो पॉइजन विथ मीन 1 है, इसका मतलब लैम्डा 1 है, और पॉइजन की वैल्यू क्या होती है, इट कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी. तो मैक्सिमम जो है वो 1 से लार्जर है, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको 1 माइनस कर दो, तो 1 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस मैक्सिमम इज लेस देन 1. ओके, तो दैट विल बी इजियर 1. तो 1 माइनस करे करना तो आसान रहेगा. तो जब मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू 1 है तो आइदर इट विल बी 0 और 1, है ना, x1 0 x2 1 x2 0 x1 1 या बोथ आर 1. दैट केस 3 केसेस आएंगे तो उससे हो जाएगा. A fair die is rolled 3 times. The conditional probability of 6 appearing exactly once, given that it appeared at least once, है ना. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, E इवेंट हो गया 6 appearing at least once, और F इवेंट हो गया it appeared at least once. So E given F फाइंड करना है, तो ये 12th क्लास का क्वेश्चन है. 13 है x बाइनोमियल 2, 1/2 है. सो B मीन्स व्हाट, अगर क्लियर ना हो व्हाट इज मीनिंग ऑफ B, सो यू जस्ट गो ऑन फर्स्ट पेज, ठीक है, और वहाँ एक्सप्लेन किया होगा कि व्हाट दे मीन बाय B. देखो यहाँ पे, सो अगर समटाइम्स इफ नोटेशन इज नॉट क्लियर यू गो ऑन फर्स्ट पेज. सो B and P इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स N and P. ओके, तो बाइनोमियल 2 1/2 है, तो कह रहा है E ऑफ 2/1 + x. तो ठीक है, डेफिनेशन लगाना डायरेक्टली. डेफिनेशन ट्राई कर सकते हैं, देन समेशन ओपन करना पड़ेगा, अगेन यू हैव टू फिट. सो ये सब कैलकुलेशन क्वेश्चंस है, यू कैन डू दैट. द मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल, 14 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं. So the MGF of integer valued random variable x is given by,
सो ई की पावर माइनस टी से तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1/10 2 ई की पावर माइनस टी प्लस 1 प्लस 4 ई की पावर टी प्लस 3 ई की पावर 2t। तो एक्चुअली एम जी एफ है तो एक्स की वैल्यू तुम्हें दिख रही होगी, एक्स कैन टेक वैल्यू -1 0 1 2 ओके, एंड उसके अकॉर्डिंग जो साथ में नंबर है वो उसका मास है उस पॉइंट पे। सो एम जी एफ क्या होता है डिस्क्रीट में, समेसन ई की पावर टी एक्स आई और इनटू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स आई। सारी वैल्यू पता है, यू कैन पुट इट। तो 2x लेस देन 5 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, तो x लेस देन 1 तो उससे निकल जाएगा ये चीज़। x1 x2 IID एक्सपोनेंशियल 3 है, एक्सपोनेंशियल 3 ओके। बोल रहा है कि x1 प्लस x2 मोर देन 1 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो x1 प्लस x2 क्या होगा, दो एक्सपोनेंशियल का सम क्या होता है, इसको यूज कर सकते हो, गामा में जा सकते हो चाहो तो। हाँ जी, व्हाट विल बी सम ऑफ x1 प्लस x2, क्या सॉल्व करोगे इसको, यू वांट टू सॉल्व इट। तो गामा में कन्वर्ट करके देन तुम उसका 1 माइनस करके भी यूज कर सकते हो। अब आता है ये ऑब्जेक्टिव था इतना, और अब आता है सब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन ए पढ़ने से पहले समझ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं बेस थ्योरम का होगा शायद, है ना। स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी हैज़ 30% एशियन, 40% अमेरिकन, 20% यूरोपियन, 10% अफ्रीकन। It is known that the 40% of all Asian students, 50% of all American, 60% of European students, and 20% of all African students are girls. So find the probability that a girl chosen at random, ठीक है। तो a student is chosen at random, that is girl is given. So from university is an Asian. So क्या probability है that girl will be Asian, ठीक है। तो इस तरह से E1 E2 E3 तुम पार्टीशन बना लेना, और एक्चुअली जो स्टूडेंट चूजन है वो गर्ल है, ये गिवन है तुम्हें, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, बेस थ्योरम लगाना। बी है A1 A2 A3 बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पेयर वाइज है, ठीक है, दो दो करके। ईच AI की प्रोबेबिलिटी पता है, सपोज दैट A3 एंड A1 यूनियन A2 आर इंडिपेंडेंट। सो इंडिपेंडेंट है मतलब इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, मतलब A1 यूनियन A2 इंटरसेक्शन A3 होगा, सो यू कैन सेपरेट इट। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कुछ फॉर्मूला लगा के तुम इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको यूज़ करना है तुम्हें। तो A3 और A1 यूनियन A2 उस तरह से उसको ब्रेक करना। एंड जब दिस इफ E1 E and F are independent, then E complement and F are also independent, E and F complement are also independent, E complement and F complement are also independent, वो भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो 1 माइनस करके उस तरह से हो जाएगा। फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, तो 3 सेट का होता है। CDF दिया है, प्रोबेबिलिटी पूछा है, जिस तरह क्वेश्चन हमने किए हैं। सो हाउ टू फाइंड डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF, ठीक है। ये मिक्स टाइप का है तो भी वर्क करेगा, डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो या मिक्स टाइप हो, किसी भी तरह का CDF है, इन ऑल द वे दैट फार्मूला विल वर्क, है ना। CDF वाला भी, और एक था मीन निकालने वाला भी CDF से, 1 माइनस FX का इंटीग्रेशन मीन के लिए और प्रोबेबिलिटी के लिए, है ना। CDF एट राइट पॉइंट माइनस CDF एट लेफ्ट, बट इक्वलिटी का ध्यान रखना है। तो वो फॉर्मूला मैंने किया था, उसको ट्राई करना। 18 है x विद अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ PDF दिस। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ mod x मोर देन 1 लेस देन, इसे इंटीग्रेशन से हो जाएगा, ठीक है। x को ओपन करके आ जाएगा। xy विद अ यूनिफॉर्म 0 1 रैंडम वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिस। ओके, तो xy जो है यूनिफॉर्म 0 1 है, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगर फाइंड करना चाहो तो IAD है। हाउ विल सॉल्व, कोई बताओ मुझे। ग्राफ से देख लेंगे। ग्राफ से देख लें, ग्राफ से एक सर्कुलर पोर्शन आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर उसका ओके, एरिया और उसका एरिया निकाल लेंगे, भी चलेगा। क्योंकि XY यूनिफॉर्म है, तो तुम अगर सपोर्ट देखोगे XY के जॉइंट का, तो 0 1 0 1 का वो बॉक्स आएगा, रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर, इनफैक्ट स्क्वायर आएगा। स्क्वायर में से देख लो ये वाला पोर्शन कितना कॉमन है, सो दैट एरिया अपॉन टोटल एरिया,
ओके, और यूनिफॉर्म है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। सर इसी का जो एबव क्वेश्चन था ना 19 का ए, इसी पे सेट कर रहे थे, जो मॉड x -1 दे रखा है ना। कहाँ दे रखा है मॉड x -1? सर इसके बाद वाला क्वेश्चन। इसके बाद नहीं सर, जो वो अभी, हाँ सर ये वाला 18 है ए, जो मॉड दे रखा है ना, मॉड x -1, इसका मीन तो 1 होगा क्योंकि ये डबल एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है। इसी पे सेट कर रहे थे वो वाले क्वेश्चन को। तो जब मॉड होगा तो मॉड रखो, नहीं है तो मॉड जबरदस्ती नहीं बनाना है, तो वो शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल होता है। तो यहाँ पे रेंज -∞ से +∞ है, बट वहाँ पे रेंज मेरा डिपेंड कर रहा था x पे। क्योंकि उसको शिफ्ट किया गया था। ओके, तो 19 देखो, 19A है, लेट द रैंडम वेरिएबल x1 एंड x2 हैव द जॉइंट PDF दिस एंड फाइंड द कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2। ओके, तो फिर से कोवेरिएंस है तो फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, ex1 x2 माइनस ex1 ex2। तुम चाहो तो इससे सेपरेटली फाइंड कर सकते हो, मतलब x1 का मार्जिन निकाल लो, x2 का मार्जिन निकाल लो, अगर निकलता है तो उससे यूज़ कर लो, नहीं तो कंडीशनल से फिर अगर होता है तो। b है x1 to x100 b यूनिफॉर्म -1/2 to +1/2, और t जो है वो x1 से x100 तक है, सम है। तो यूजिंग चेबीशेव इनइक्वालिटी सो दैट प्रोबेबिलिटी t² मोर देन इक्वल टू 25 विल बी लेस देन इक्वल टू 1/3। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमने किए थे जब चेबीशेव इनइक्वालिटी पढ़ा था, तब हमने सॉल्व किया था। जस्ट तुम्हें क्या करना है, t² मोर देन 25 है, दोनों तरफ मॉड लो, तो मॉड t इज मोर देन 5 आ गया। अब t का मीन निकाल लो, t का मीन निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज ऑफ ईच xi हैज मीन 0, इज इट? So each xi means 0, so mod t minus 0 more than equal to epsilon, so it will be less than equal to variance t upon epsilon square, and then you can use directly. So बस ये है कि square हटा दो and then you can fit on Chebyshev inequality. x1 x2 xn with a random sample 20th question, ठीक है? From a population having PDF this, find the uniformly minimum variance unbiased estimator. तो है ना, ये क्वेश्चन 2015 में भी आया है, सिमिलर क्वेश्चन, मतलब आई थिंक एग्जैक्टली सेम भी था। उसमें ऑप्शंस दिए, यहाँ ऑप्शन नहीं है 2015 में। तो ठीक है, इसमें तुम कंप्लीट सफिशिएंट निकाल के 11 से फिर लगा सकते हो। और दूसरा है, इससे हो जाएगा आई थिंक। बी पार्ट है, x बार 9 है और x² 6 है, विद अ सैम्पल मीन एंड सैम्पल वेरिएंस रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन द रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 3 फ्रॉम नॉर्मल μ1 सिग्मा स्क्वायर, एंड y बार दे रखा है, sy² दे रखा है, बी द सैम्पल मीन एंड सैम्पल वेरिएंस। ओके, तो x और y का दोनों सैम्पल मीन सैम्पल वेरिएंस पता है। सो फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर μ1 इसका फॉर्मूला होता है, इसको अप्लाई करना μ1 - μ2 का। सो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट है, तो केस देख लेना क्या क्या पता है। सो मीन एंड वेरिएंस बोथ आर अननोन्स इन बोथ डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ जो है पहले वाले का वेरिएंस जो है दैट इज जस्ट हाफ ऑफ द वेरिएंस ऑफ सेकेंड। सो वेरिएंस इक्वल नहीं है दोनों सैंपल का, साइज सिंपल है, साइज इक्वल है और वेरिएंस इक्वल नहीं है। तो जो केसेस थे उसके हिसाब से देखना, जब वेरिएंस डिफरेंट है तो क्या फॉर्मूला है। आई थिंक ये वही क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था, एक बार हमने किया था शायद, तो वी वर फेसिंग समथिंग रॉन्ग इन दैट, पता नहीं, करके देखना। x1 x2 x10 be the random sample of size 10 from population having PDF this, h0 h1 दे रखा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता है, तो फाइंड द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। फिर से 11 पियर्सन लेमा लगाना है, L1/L नॉट मोर देन k निकालने के लिए अल्फा दे रखा है, फिर अल्फा से पावर आ जाएगा, मतलब k निकल जाएगा, पावर आ जाएगा। 22 f फंक्शन है -1 to 1 2r कॉन्टिन्यूस है, शो करो कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी। तीसरा प्रूफ है, देखना,
ये भी टेलीस्कोपिक टाइप का होगा क्या, चेक कर लेना, ठीक है। सो मे बी टेलीस्कोपिक से कुछ कैंसिल होके आ जाएगा। फर्दर नेक्स्ट है, इफ f इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 to 1 and f dash x modulus is less than 1 for all x between 0 and 1, then so that f of 1 by n minus f of 1 by n plus 1 का modulus is, this is convergent series। so मतलब इस तरह हो गया ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट, ओके। तुम डिफरेंशियलिटी का डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, प्रूफ है, ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। अब प्रूफ नहीं आएंगे बट यू कैन ट्राई जस्ट फॉर लर्निंग। 23 है, एफ 0 1 2 आर कंटिन्यूअस फंक्शन है, 0 to 1 एफ टी डी टी 1 है। सो करो देयर इज अ पॉइंट सी सच दैट एफ सी इज 3c स्क्वायर। तो 0 से 1 में इंटीग्रेट करने पे एरिया 1 आ रहा है, तो ऐसा कोई कर्व कंसिडर कर लो, वेरीफाई भी कर सकते हो एग्जाम्पल लेके, तो 3c स्क्वायर इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो एग्जिस्टेंस है, तो फिर से एग्जिस्टेंस टाइप का है, तो तुम मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इस तरह से कुछ अप्लाई कर सकते हो। बी पार्ट नहीं करना है 23 का बी, क्योंकि अब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता है, सो यू कैन इग्नोर इट। एफ आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल, ये तो तुमने किया होगा, 2 वेरिएबल क्वेश्चन है, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, देन जो कंडीशन है 2 वेरिएबल है मैक्सिमम मिनिमम। बी पार्ट है फाइंड लिमिट, सो लिमिट यू ऑल्सो नो, सो फिट करो। कंसिडर द मैट्रिक्स, क्वेश्चन है अल्फा बीटा फाइंड करो, ए बिकम्स ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी पता है, सो उसको ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई यूज करना। यूजिंग दिस वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा सॉल्व द सिस्टम, अल्फा बीटा निकालने के बाद ये सिस्टम सॉल्व करो। और नेक्स्ट है ए दे रखा है, फाइंड गामा सो दैट रैंक ऑफ ए इज 2, तो गामा निकालो ताकि, तो इसको इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना, रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म आर आर ई, सो उससे इतना ही होगा इसमें, ठीक है। तो फिर आ गया 2012, तो पहले 25 तक ही आते थे, 25 या 29 क्वेश्चन आते थे, ओके। तो मैंने ओरली क्वेश्चन एक बार बस देख लिया है, तुम लोगों को सॉल्व करके ट्राई करके आना है नेक्स्ट क्लास में। 2000 कौन सा वाला पेपर, 11 वाला पेपर ना, अभी मैंने जस्ट 11 वाला डिस्कस किया है, सो 2011 वाला डिस्कस ट्राई करना है, और जो डाउट होगा फिर कल 2011 का डिस्कस डाउट करके फिर 12 वाला डिस्कस करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा तब तक सारे पेपर ना हो जाए, ओके। सो बाकी कोई बाकी डाउट्स है तो यू कैन पोस्ट इन ग्रुप, यू कैन सेंड मी पर्सनली, ओके। किससे कुछ पूछना है और नहीं है तो ठीक है, कल मिलेंगे सेम टाइम पे, मे बी 6 to 9 या, हाँ क्योंकि आज थोड़ा मैं लेट हो गया क्योंकि मैं शादी में गया था, तो अभी आया था, ओके ठीक है फिर, ओके चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।